Next case. शुरू करो भाई. जी 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 सर मिसेस शकीला बीबी वाइफ ऑफ मिस्टर इमरान 42 years old with no formal education. She is housewife with resident of Kasur, married for 21 years, para 7 plus 0, all SVD by traditional birth attended at home. Her last child born 7 years ago. First day of her last menstrual period was 11th March 2021 and known case of diabetes mellitus for last 8 months. She admitted in Arif Memorial Teaching Hospital through OPD on 20th March 2021 with complaint of something coming out of vagina for last 2 years, burning micturition and increased frequency of urine for last 1 week. My patient was in usual state of health 2 years back when she experienced something coming out of vagina that was preceded by perineal heaviness and backache. Initially mass was small in size but gradually increased in size over the period of time up to the size of fist. Initially mass was reducible spontaneously on lying down, but for last 6 months it remained lies outside the vagina all the time, which was manually reducible. It's associated with increased frequency of urination and burning micturition and incomplete feeling of bladder emptying. She has to digitate the mass for urination. There was no history of dysuria, nocturia, urinary incontinence, and the urinary retention. Also complained of mild constipation on and off that was relieved by taking ISPA or HUS. She never had to digitate for defecation. She is avoiding sexual activity for last 20 years due to this problem. There was no history of abnormal vaginal bleeding, intermenstrual bleeding, postcoital bleeding, and PV discharge. She is housewife and mostly doing household work in squatting position, and sometimes she has to lift heavy weight also. There was no history of chronic cough, chronic constipation, and any abdominal mass. My patient was mother of 7 children, delivered through spontaneous vaginal delivery by traditional birth attendant at home. The interval of pregnancy was short, but there was no history of prolonged labor, obstructed labor. Birth weight of the babies were normal according to patient, but there was no history of instrumental deliveries, no history of any difficulty to deliver the placenta. There was no history of perineal tear during birth. She never consulted to any doctor for this problem and never used any sort of treatment for that for last 2 years. Her menarche was at the age of 13 years. Her LMP was 11th March 2021. Her menstrual cycle was regular with average flow. There was no dysmenorrhea, intermenstrual bleeding, or any discharge. There was no history of gynecological malignancy. Pap smear was not taken. She's avoiding sexual activity for last 1 year. Before that, she used a barrier method for contraception. She is para 7 plus 0. All SVD by traditional birth attendant at home were carried out at term with no antepartum, intrapartum, and the postpartum complication. Babies were average weight and good at with breastfed and vaccinated. All alive and healthy, and last child born was 7 years ago. She has been a known case of diabetes mellitus for last 8 months and non-compliant to it. No history of hypertension, tuberculosis, asthma, chronic bronchitis. There was no family history of diabetes mellitus, blood pressure, tuberculosis, asthma, chronic bronchitis, or any gynecological malignancy. Surgical history was unremarkable. She was a non-smoker, non-addict, non-alcoholic, and not tobacco taking. Patient belongs to low-class family, living her own house. Her husband was laborer. Monthly income was 23 to 28,000. On examination, a middle-aged patient was sitting comfortably on chair. Her weight is 50 kg, height 150 centimeter, making her BMI 22.2. Her blood pressure was 110 by 70 millimeter of mercury, pulse 92 beats per minute,
regular with good acquired temperature 98 Fahrenheit scale and respiratory rate 18 breath per minute. She is paler on palmar creases, nail beds or conjunctiva. There was no cyanosis, clubbing, koilonychia, petechiae, and bruces. There was normal orodental hygiene. Thyroid was not palpable. All accessible lymph nodes were not palpable. No pedal edema was observed. All four quadrants of the breast were normal with no lump or tenderness. Nipple were normal and no retraction seen. All axillary lymph nodes were not palpable. There were normal vesicular breathing bilaterally on auscultation with no added sound. Both heart sound were audible with no added sound. Abdominal examination. On its inspection, her abdomen was flat with centrally placed umbilicus. Moving with respiration, there was no surgical scar mark, no visible pulsation, pigmentation, and prominent vein. All hernia orifices were intact. On palpation, abdomen soft, non-tender. There was no palpable mass in all four quadrants of the abdomen. On local examination, uh, vulva is normal looking with scanty hair growth 2 into 3 centimeter mass seen coming out of vagina, which is most probably second degree UV prolapse because cervix is hanging out of the vagina. No, there was no PV bleeding, PV discharge, or ulcer seen. Stents incontinence can't be demonstrated because her bladder is empty. On per speculum examination, cervix is congested and hypertrophied. There was no bleeding and discharge seen. On bimanual examination, uterus was central, normal size, normal looking, mobile with smooth surface. Bilateral fornices are clear. Okay. Can you summarize your case better? Yes, sir. Mrs. Shakila BB, 42 years of age, non-case of diabetes mellitus, para 7 plus 0, all SVD with complaint of something coming out of vagina for last 2 years, associated with increased frequency of urine and burning micturition. On examination, 2 to 3 centimeter mass coming out of vagina, which was congested and hypertrophied. कुछ और भी बताते हैं इसमें? How do you examine a prolapse? Sir, इसकी तैयारी नहीं कराएंगे? जी सर. चलो कुछ नहीं. हाँ. How do we examine a prolapse? Sir, on bimanual examination, on during examination, insert. मैं भी ठीक बता रहा हूँ. पहले पोजीशन बताओ. जी सर. Sir, patient should be in lithotomy position, and then patient draped and painted. नहीं, मैं भी आराम से रिलैक्स करो, कुछ नहीं हो रहा. जी सर. पेंट और ड्रेप तो सर्जरी से पहले करते हैं ना? जी सर. Sir, on examination, on bimanual examination, insert the finger and ask insert the finger and ask a patient to cuff. If cervix is feel at the level of ischial spine, normally cervix is at the level of ischial spine. If it descends below the ischial spine, then it will be UV prolapse. First degree UV prolapse. Or if after the cuff, if something coming out of the vagina, then it is the second degree prolapse. शाबाश. ये वाला आपका जो पेशेंट था, ये कौन सी डिग्री का prolapse था? Sir, second degree prolapse.
It was a second degree prolapse. जी सर. Okay, and इसके बाद फिर क्या करते हैं? सर इन्वेस्टिगेशन. नहीं, इन्वेस्टिगेशन पहले, एग्जामिनेशन पहले थोड़ा सा कंप्लीट कर लें, फिर हम गो टू जी सर. सर इन्वेस्टिगेशन. जी जी सर, पर स्पेकुलम एग्जामिनेशन करते हैं फॉर to see the cystocele, rectocele, or enterocele. Okay, how do we see the enterocele? Sir, in a Sims position, patient is asked to lie on the left lateral position, lower limb, patient lower limb is flat, and the upper lower limb is under the. Flat नहीं होता, straight होगा. जी सर. Flat नहीं होती, straight होती. सर lateral. Lower limb. एक क्या करते हैं हम? Sir, ask a patient to lie on the left lateral position with the lower limb straight, and the upper lower limb is under the neck, and the Neck. जी सर. अच्छा. और सर upper lower limb is bent over the chest, and upper. Sorry sir. चलो. Sir, आपने एग्जामिन किया था ये? सर ये नहीं एग्जामिन किया था. एग्जामिन नहीं किया था. जी सर. तो हाउ डिड आई नो कि आपने एग्जामिन नहीं किया था? मुझे कैसे पता चला? सर सर जैसे मैं बता रही थी. सॉरी. ओके. व्हाट अबाउट हर, ये कोई इंटेरोसील थी कि नहीं थी कि देखी नहीं? सर जस्ट माइल्ड रेक्टोसील था. सर इंटेरेसिल नहीं. जी सर. ओके चलो. सर माइल्ड रेक्टोसील था. जी सर, इंटेरेसिल नहीं देखी थी. सॉरी. क्या देखा था? सर रेक्टोसील थी माइल्ड सी. रेक्टोसील थी माइल्ड सी. जी सर. और व्हाट अबाउट सिस्टोसील? सिस्टोसील थी कि नहीं थी? जी सर. सर सिस्टोसील थी. वो कितनी बड़ी थी? सर +2. सर माइल्ड टू मतलब मॉडरेट. अच्छा, सिस्टोसील को किस तरह क्लासिफाई करते हैं? Sir, How do we get if lower third of upper third of the upper two-third of the vagina, if there is bulge on the upper two-third of the vagina, then is said to be a cystocele. upper two-third है तो उसको सिस्टोसील कहते हैं. Sir, अब चलो. sorry. चलो, let's move on to investigation. Investigation आप क्या करो? Sir, I will do baseline is investigation include complete blood count, random blood sugar Okay. level, a viral marker, urine, कौन से? sir, hepatitis B surface antigen and anti-HCV, and urine complete and examination. और And then, sir, other investigation include HbA1c because she's known case of diabetic. Then we'll do HbA1c. ओके. और Sir, for anesthesia purpose, if a patient tries surgery, then we'll go chest X-ray, ECG, and ultrasound, abdominopelvic ultrasound. why do we need to have abdominal pelvic ultrasound for anesthesia purposes? Sir, if any mass
for any mass of the abdomen or What difference to that? आपने ये कहा ना कि बाकी सारी चीजें आप ये कर रहे हो for anesthesia purposes. जी सर So why do we need to have abdominal pelvic ultrasound for anesthesia purposes? that because on examination there was no palpable mass, so no need to do ultrasound. So you will not do the ultrasound. जी सर Ultrasound काट दें. यस सर So we are not doing ultrasound. Okay. आगे. और sir urodynamic study if exclude UTI. urodynamic studies to exclude UTI. If UTI is excluded, then urodynamic studies means in case of stress incontinence. Urodynamic studies बेटा क्या होती हैं? When do we do urodynamic studies? Sir, it includes uroflowmetry and the cystometry. In uroflowmetry, we noted the flow rate of the flow rate and the volume of the patient voided. Okay. अपना but why do we do urodynamic studies? कि हर किस we do it Yes. on every No, sir, not in every patient. In those patients which complains urinary incontinence. urine incontinence. Yes, sir. So was this patient complaining of urine incontinence? No, sir. Then why are we doing urodynamic studies in this patient? Sir, will not do urodynamic study in this patient. तो ये भी नहीं करेंगे. नहीं सर ये भी नहीं करेंगे. अच्छा फिर आप क्या क्या इन्वेस्टिगेशन करेंगे? सर नॉर्मल बेसलाइन हम्म. HbA1c. अच्छा. What is the role of HbA1c in this case? Mavish, I can't hear you. Can you people hear me? इतनी खामोशी क्यों होगी एकदम? आवाज आ रही है. आपको आ रही है बात? ओके. हेलो माविश आपको आवाज आ रही है? जी सर सर अब भैया वो कनेक्शन लॉस्ट हो गया था. सॉरी. अच्छा मैंने आपसे क्या पूछा था लास्ट बार? What सर is the role of HbA1c in this case? Sir, my patient is diabetic for last 8 months and non-compliant, so I will do HbA1c to see the level and Sure. What is the normal value of HbA1c? Sir, 4 to 5.6 is the normal value. If yes, sir. If 4.6 suppose इसकी अगर 7 आ जाती है तो sir, then she is diabetic. 4 to 5.6 का आपने? जी sir, 4 to 5.6. Okay. अगर let's suppose इसकी 7 आ जाती है फिर then what significance does it show? It means she is diabetic. More than 6.5. Confirm the diabetic. Confirm the diabetic. 7 आ जी सर 7. She is diabetic. तो फिर क्या करेंगे? आप जो भी इन्वेस्टिगेशन करते हो there is a reason why we do it.
So you have the HbA1c level done और वो 7 आ गया. Then, sir, अब क्या करें? first optimize the sugar level before going any treatment. क्या करूँ? What will you do to sugar levels? Sir, involve the sir, patient refer to physician to control the blood sugar. Okay. अच्छा. उसका तो मसला जो है वो तो समथिंग कमिंग आउट ऑफ है, तो हम ये फिजिशियन को जाके इन्वॉल्व करके क्या करेंगे? वो कितनी देर लगाएगा इसको शुगर कंट्रोल करने में? ओके, चलो अब हमारा इन्वेस्टिगेशन का पार्ट खत्म हो गया. लेट्स मूव ऑन टू मैनेजमेंट. जी सर. आपने मुझे कहा कि आप इसका एब्डोमिनल पेल्विक अल्ट्रासाउंड कराओगे. जी सर. आप क्यों नहीं कराओगे? Why didn't you have the Sir, because she's complaining of something coming out of vagina, and on the examination there was no mass palpable, so mass is excluded. what is the sensitivity of clinically identifying a mass और उसी मैच को फाइंड आउट करने के लिए अल्ट्रासाउंड? कुछ है फिगर्स आपके ज़हन में? What is the sensitivity or specificity of picking up a mass, a small mass on clinical examination or on ultrasound? Sorry, sir. इन दोनों में ज़्यादा रिलायबल कौन है टू पिक अप ए मास? अल्ट्रासाउंड ज़्यादा रिलायबल होता है कि क्लिनिकल एग्जामिनेशन ज़्यादा होता है? Sir, ultrasound. तो वो तो आपने करवाया नहीं. इज देयर पॉसिबिलिटी कि कि आप कोई चीज मिस कर रहे हो, या जो ये प्रोलैप्स वाला पेशेंट होता है इसमें स्पेसिफिकली क्या चीज देखते हैं? What are other things which you want to look for? कि सिर्फ मैच देखना चाह रहे हैं? Sir, any polyp? Sir, endometrial polyp. अच्छा, अगर इसको पॉलिप होता है तो फिर इसके सिम्टम्स में और क्या चीज आनी चाहिए? Sir, intermenstrual bleeding. ओके. अच्छा, और Postpartum. किसी और ऑर्गन को आप देखना जी पसंद, सर. जी सर. किसी और ऑर्गन को आप देखना चाहोगे? Sir, adnexus. एक एडनेक्सा में क्या देखना चाहोगे? Sir, any. Sir, any cyst. एनी सिस्ट. अच्छा, और कुछ? एनीथिंग एल्स? Sir, fibroid. Any cyst.
शाबाश, ये तो आप इसमें आ गए हो ना, गायनी रिलेटेड। उसके अलावा भी कुछ देखना चाहोगे? उसके आसपास के कोई ऑर्गन? सर किडनीज, हाइड्रो फॉर हाइड किडनीज का सर, हाइड्रो आई मीन यूरिटर। Why do you want to see ureters in this case? और क्या अल्ट्रासाउंड में यूरेटर नजर आते हैं? नहीं सर, सॉरी सर, मिस्टेक हो गई। क्या अल्ट्रासाउंड में यूरेटर नजर आते हैं कि नहीं आते? अगर आते हैं तो कब आते हैं? चलो, आपको को अगर आप कैमरे एक प्लीज, और अपनी ना मुझे ये जो आपने हिस्ट्री इस पे लिखी हुई है, आई वांट टू सी दैट पेपर फर्स्ट। सही हो। हाँ, अभी जो हिस्ट्री शीट दिखाई ना, मुझे ये दिखाओ जिस पे आपने लिखा हुआ सर। कितने पेजेस है? सर 3। काउंट करो। सर 3। आगे पीछे दोनों है? जी सर। नहीं, टोटल 3 है कि टोटल 6 बनते हैं फिर? सर है 3 और टोटल 5। टोटल 5 पेजेस बनते हैं। चलो बस ठीक है, कैमरा पीछे बंद करा दो अगर अनकंफर्टेबल। देखो, पहली बात तो ये है, डू रिमेंबर दैट दोज ऑफ यू हु आर सिटिंग हियर या लिसनिंग टू मी, ये हम प्रैक्टिस कर रहे हैं फॉर एग्जाम की। और एग्जाम की एक बड़ी अच्छी बात होती है कि वो एक टाइम बाउंड, आपको फिक्स टाइम मिला होता है कि आपने इतनी देर में ये चीज करनी है। जब आपने वो चीज करनी है, आई डू अंडरस्टैंड, अभी तो मैं भी एग्जाम नहीं देना, लेकिन बाकी जिन्होंने भी देना है, उस टाइम का ख्याल रखना बड़ा जरूरी है। और वो आपको इम्पोर्टेंस तब आएगी फ्रॉम द डे वन, जब भी आप हिस्ट्री लोगे या लिखोगे, आपने उसी टाइम पीरियड के अंदर हिस्ट्री एग्जामिनेशन वो पूरा करना है। What really happens is in the start of your years you of course you will overshoot। कि अगर आपको, हम लोगों को पता है कि ये पहला वाला जो हाफ होता है उसमें कितना टाइम होता है आपको हिस्ट्री लेने के लिए? हाउ मच टाइम इज गिवन? आई थिंक सर 8 मिनट। 8 मिनट्स तो नहीं बेटा, 8 मिनट्स तो बहुत थोड़े होते हैं। हिस्ट्री एग्जामिनेशन करने के लिए कितना टाइम चाहिए होता है? पहला हाफ जो है, इट्स ऑलमोस्ट अबाउट 30 मिनट्स। 30 मिनट्स के अंदर आपने पेशेंट के पास बैठना है, उससे हिस्ट्री लेनी है, उसमें आपने लिखनी है, अपनी हिस्ट्री लिखनी है, और उसके बाद आपने एग्जामिनर से हिस्ट्री भी अपना इन्वेस्टिगेशन भी मांगनी इन दोज फर्स्ट 30 मिनट्स। व्हाट यू गोना पीपल डू इज दैट, ये जो आप 11 मिनट्स बता रहे हो, ये है बाद का सेकेंड हाफ। उसमें 11 मिनट्स के 22 मिनट्स के टोटल आपके होते हैं सेशंस। इसमें पहले हाफ के अंदर, जिस तरह पहले मैंने इन्वेस्टिगेशन के बारे में पूछा, सेकेंड हाफ के अंदर वो मैनेजमेंट के बारे में पूछा। लेकिन फर्स्ट 30 मिनट्स ये दिस इज योर टाइम, जिसमें आपने बैठ के अपनी उसकी हिस्ट्री कंप्लीट करना है, उसको ऑर्गेनाइज करना है और उसका वो करना है। अगर आप इतनी डिटेल में लिखना शुरू करके, आप 5 सफ़े नहीं लिख सकते इन हाफ एन आवर। हाफ एन आवर का मतलब ये है कि उसमें सिर्फ आपने हाफ एन आवर के अंदर सिर्फ हिस्ट्री नहीं लिखनी, आपने उसका एग्जामिनेशन भी करना। तो देन द टाइम बाउंड बड़ा करना है। इनिशियली जो अभी नए नए लोग हैं, लाइक मैविश की तरह के, उनको मेरी सजेशन ये है कि वो जरूर पूरा लिखें, लेकिन वो 30 मिनट्स के बाद वहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लें कि जी ये हमने यहाँ तक इस टाइम में ली थी और ये वाली चीजें हमने 10 के बाद में जाके।
और आहिस्ता 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 आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होती जाएगी। ये सारा का सारा उस 30 मिनट्स के अंदर आना चाहिए। अब Okay. हर हिस्ट्री, नरेश मेरी बात समझ आई है कि नहीं है? जी सर, जी सर। कि जहां तक आपको 30 जी मिनट सर। के अंदर ही आपने एग्जाम की तरह मॉक करके वो पूरा करना है। जरूरी नहीं वो कई बार पूरा होगा, नहीं होता उसके नीचे आप एक रेड किसी से लाइन लगा दो कि जो ओवरबोर्ड गए हो आप वो करके हो। उससे फिर ये होता है कि बाद में बैठ के आप सोच देखते हो कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट थी, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं थी। जी सर। तीसरा, you don't have to write everything on piece of paper. So that is not kind of ideal और उतना टाइम भी नहीं होता, क्योंकि कई बार ऐसा होता है आप साथ साथ आप एग्जामिनेशन कर रहे हो, साथ साथ आप हिस्ट्री अपनी कंटिन्यू कर रहे हो, साथ साथ टाइम आपका कम हो रहा है। ठीक, जी क्योंकि सर। मुझे आप बताओगे कि इस पेशेंट में क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हैं, अगर पूछा जाए आपसे? सर सॉरी, रिस्क फैक्टर। हाँ, या इस पेशेंट की रिस्क फैक्टर नहीं, मैं क्या क्या प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, अगर उनको आपने आइडेंटिफाई करना हो। सर एक डायबिटीज है, शाबाश। मल्टीपैरिटी, मल्टीपैरिटी मतलब क्या मल्टी, प्रॉब्लम इसमें? चलो चलो सर चलो रिस्क ठीक, फैक्टर। डायबिटीज, मल्टीपैरिटी भी चलो लिख देता हूँ, और कुछ यूरिन से रिलेटेड? सर बर्निंग मिक्सचरेशन, इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन, तो उसको आप क्या कहते हो फिर? यूरिनरी कॉम्प्लिकेशन, नॉट इज यूरिन की कॉम्प्लिकेशन, इट इज नोन एज क्या? यूटीआई। क्या चीज होगा? सर यूटीआई होगा। चलो चलो यूटीआई डाल देते हैं हम। और मेन मसला क्या था इसका? सर प्रोलैप्स, समथिंग कमिंग आउट ऑफ वेजाना। प्रोलैप्स। अब मुझे आप ये बताओ, इन सारी हिस्ट्री के अंदर ये आपने लेट्स सपोज 3-4 चीजें लिख ली। जी सर। हिस्ट्री में मुझे बताओ आपने डायबिटीज को किस तरह चेक किया था, या उसको डायबिटीज को क्या आपने कितनी उसको इज्जत अफजाई की, या उसके बारे में क्या सवाल पूछे थे? अगर कोई डायबिटिक पेशेंट हो उससे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं? सर एक पेशेंट हाँ आपके पास आता मेरी, है, हाँ, ये कहती जी मुझे हाँ जी डायबिटीज है, आप पूछते हो कि जी आपको ब्लड प्रेशर है, वो कहती नहीं है। जी शुगर है, कहती हाँ जी शुगर है। तो क्या क्या क्वेश्चन पूछते हो? सर frequency of the urine, how many times you will pass urine in a day. अच्छा, फ्रीक्वेंसी पूछ ली, अच्छा, और um, मैं भी सब चीजें दुनिया की भूल जाओ, सोचो एक मरीज सामने बैठा हुआ है, मैं बैठा हूँ जो डायबिटिक हूँ, उससे क्या पूछोगे सवाल आप? फॉरगेट अबाउट, कोई भी और नहीं है यहाँ पे, सिर्फ आप और मैं बैठे हुए हैं। क्या पूछोगे सवाल? सर फर्स्ट तो increase frequency of urine, शाबाश। polydipsia, polyphagia, or how many times she eat, means poly and how many times she drink. खाना कितनी दफा खाते हो आप, और पानी कितनी दफा पीते जी हो? सर, सर मतलब बेटा अच्छा चलो, ये तो आपके सिम्टम्स ने आपने पूछ लिया, ये तो तब करते हो जब आप डायग्नोज कर रहे हो कि डायबिटिक है कि नहीं। जी सर। मैं तो कह रहा हूँ कि हाँ जी मैं डायबिटिक हूँ, इसके बाद क्या पूछोगे? सर ट्रीटमेंट के अच्छा, क्या ट्रीटमेंट क्या पूछ? मेडिसिन में। हाँ,
सर ट्रीटमेंट का अगर शाबाश, ठीक कोई बोल रहे ट्रीटमेंट दे बोलो। रहे हैं कि नहीं, कंप्लाइंट है कि नॉन कंप्लाइंट टू ट्रीटमेंट। पहली बात, सबसे पहले से पूछते हो आप जी सर। कब से है। अच्छा जी सर। व्हाई इम्पोर्टेंट टू आस्क कि आपको कब से है। व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट टू आस्क कि कब से है। इसकी कोई सिग्निफिकेंस है कि नहीं। एक आगे कहता है जी मेरी डायबिटीज मुझे पिछले 20 साल से, और एक कहता है जी मुझे पिछले 8 महीने से। इन दोनों में क्या फर्क हो। महवेश, जी सर। आवाज आ रही। जी सर, सर आ रही है। मैंने क्या सवाल पूछा। सर सिग्निफिकेंस बहुत। पूछिए। हाँ सर सिग्निफिकेंस पूछिए। हाँ। कोई है कि नहीं है कि आपको नहीं पता। सॉरी सर, नहीं पता। जिस पेशेंट को लॉन्ग टर्म डायबिटिक हो उसको क्या क्या हो सकता है अनकंट्रोल। सर लॉन्ग, जी सर सर। सर माइक्रोवास मतलब सर कॉम्प्लिकेशन। ओके, क्या कॉम्प्लिकेशन। सर रेटिनोपैथी। अच्छा अच्छा, और और चलो कोई बात नहीं। सॉरी सर। अच्छा चलो, इसके अलावा और क्या पूछते हो, मेडिकेशन के बारे में क्या पूछते हो। सर सर ये कि कौन सी मेडिसिन यूज कर रही हैं, इंसुलिन या फिर ऑरल हाइपोग्लाइसेमिक। अच्छा, एक और। सर उनकी डोज शाबाश। एंड व्हाट और टाइम, हाउ मेनी टाइम्स शी टुक इन अ डे। ठीक है, इसके अलावा सर डू यू वांट। इज हाँ, कंट्रोल और नॉट। इज कंट्रोल और नॉट, और वो कंट्रोल कैसे चेक करते हैं। सर sir, ask a patient to check sugar level, 6 level. वो रोज करेगी। जी सर। Fasting and after meal, 6 आफ्टर, level. एंड शी हैज टू डू इट एवरी डे। जी सर। जी सर, every day. For sir, for 1 week and then check it is controlled or not. अच्छा चलो, चलो वील काइंड ऑफ नाउ ये स्टॉप हेयर। नंबर एक दो तीन बातें हैं जो मैं वो ट्राई टू री एम्फेसाइज करके वो मैं आपको बताऊंगा। लेट्स स्टार्ट विद योर हिस्ट्री। आपकी जो हिस्ट्री थी, क्योंकि आपने देखा कि वो कोलैप्स है जो अक्सर एग्जामिनेशन में इस तरह ही होता है। जी सर।
यू फोकस्ड ऑन द प्रोलैप्स और आपने डायबिटीज को हाथ ही नहीं लगाया, ना पूछा कब से है, मेरा ख्याल है शायद ये बता दिया था, लेकिन कौन सी दवाई है, कंट्रोल्ड है नहीं कंट्रोल, सर चेक करती है नहीं, ये सारी चीजें इट हैज टू कम डाउन जी ऑन सर। दिस। ठीक है। जी सर। दूसरा, जब भी प्रोलैप्स की बात आएगी आपको उसकी क्लासिफिकेशन किस तरह क्लासिफाई करते हैं कि वन जैसे अपना प्रोलैप्स सेकंड डिग्री है, फर्स्ट डिग्री है, थर्ड डिग्री है, या कंप्लीट प्रोसिडेंशिया है। जी नंबर सर। 4, ये मेरा ख्याल है आई थिंक अरूबा हैज टेकन लॉट ऑफ क्लासेस ऑन दिस। अगर वो आपने अटेंड की होती तो प्रॉब्ली थोड़ी सी जिंदगी आसान हो जाती है आपकी। दूसरा, लेफ्ट लेटरल पे किस तरह एग्जामिनेशन करते हैं और डॉर्सल पे किस तरह होना चाहिए। तीसरा, नॉर्मली हम हर एग्जाम के अंदर एक्सपेक्ट कि अगर पेशेंट का स्मेयर नहीं हुआ तो आप स्मेयर लोगे, अगर नहीं मतलब एक्सटेंड ब्लीडिंग भी है तो फिर आप उसको ट्रेनिंग प्रोसेस या शो करने के लिए कि इस तरह स्मेयर लिया जाता है वो रूटीनली किया जाता है। चौथा, हर्निया को आपने किया कि जी के और हर्निया ऑरिफिसेस सारे जो थे वो इंटैक्ट थे। एंड डू रिमेंबर दैट कि जो आपके ये फेमोरल हर्नियास जो होते हैं उसके लिए आपका जो एक्सपोजर होता है पेशेंट की वो मिड थाई तक होता है। दैट मीन्स कि आपने उधर तक उसको मिड थाई तक एक्सपोज करना है, उसके बाद उसे कफ करानी है, उसके बाद उसे खड़ा करके देखना है, तो वो है। इसलिए यस, कुछ लोग कहते हैं कि जी हाँ जी नहीं है, लेकिन आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल कि आप सारे हर्नियल ऑफिसर्स के बारे में ये को, हाँ विजिबल जो आपके होते हैं, इंग्वाइनल है उसको आप मे बी यू कैन काइंड ऑफ सी एंड देन कमेंट ऑन दैट, ऐसा कह दो कि जी हम ये वाला स्टेप देखते हैं। चौथा, इन्वेस्टिगेशन, आई डिडंट गेट इनटू दैट डिटेल क्योंकि मौका ही नहीं मिला। इसमें आपने कहा कि जी मैं पहले सीबीसी, बीएसआर, हेपेटाइटिस बी, एचसीवी, आजकल के ज़माने के अंदर कोविड को मिस कर जाओ, ये भी बात ठीक नहीं है। इट हैज़ टू बी अ पेंडेमिक, और जो पेंडेमिक बेटा होती है उसको आपने जी सर। अपने मैनेजमेंट के अंदर, प्लान के अंदर ना। हम आजकल कौन सा ऑपरेशन कर रहे हैं जिसमें हम कोविड नहीं कराते? सर सब में करवा रहे हैं। फिर दूसरा, आपने कहा कि एक्सरे और ईसीजी, वाई 42 years of age पेशेंट जो बिल्कुल जो कोई ऐसी कंप्लेन नहीं है उसका एक्सरे और ईसीजी करानी क्यों जरूरी है? कहाँ की रिकमेंडेशन है कि उसको एक्सरे और ईसीजी कराई जाए? मैंने तो आज तक, ये हमने कब कराई है? रोज सर्जरीज करते हैं तो क्या उसमें सब में जो 40 प्लस है जिसकी सर्जरी करते हैं उसकी हम एक्सरे और ईसीजी कराया जाए? नहीं सर, ईसीजी तो नहीं, लेकिन एक्सरे अगर लेकिन एक्सरे कोविड, तो गवर्नमेंट में अगर मोस्टली कोविड नहीं होता तो चेस्ट एक्सरे करवाते हैं। आपका ख्याल है जो लेट्स टॉक अबाउट आवर हॉस्पिटल, अगर उसमें उसका कोविड नहीं हुआ तो एक्सरे करा के फिर हम उसको सर्जरी कर देते हैं? यस सर। यस सर। सर मैंने देखा था इसलिए। कब देखा था? सर आरिफ मेमोरियल में, क्योंकि कोविड वहाँ नहीं होता तो मैं चेस्ट। बेटा हमीरपुर की बात कर रहा हूँ। अच्छा सर, नहीं सर यहाँ पे नहीं। अगर हमने कोई प्रोटोकॉल्स बनाए हुए हैं किसी सोच के बनाए हुए हैं ना, जी सर। वो तो उन्होंने एक आइडेंटिफाई कर लिया कि जी बिकॉज ऑफ द कॉस्ट फैक्टर वो सबका कोविड नहीं करा सकते, तो उन्होंने कुछ जिसके सिम्टम्स हैं या नहीं है आई डोंट नो उन्होंने उसको किस तरह प्लान किया हुआ है, पर उन्होंने प्लान करके एक बना दिया कि जी कि चलो नहीं होगा कम से कम एक्सरे हो जाएगा। जी सर। आप तो यहाँ काम कर रहे हो, जी सर। यहाँ पे क्या कर रहे सर यहाँ पे तो कोविड करवाते हैं, चेस्ट एक्सरे ईसीजी नहीं होती रूटीनली। हो? ओके, क्या ईसीजी हर जनरल एनेस्थीसिया, ये भी किसी ने सवाल पूछा था इसलिए मैं आपसे साफ किया, हर जीए के लिए जरूरी होती है? इज इट नेसेसरी, या ये कौन सी एनेस्थीसिया की गाइडलाइंस हैं जिसमें लिखा हुआ है कि आपको ये चाहिए होता है? आई डोंट आई बेटा ऐसी कौन सी इंटरनेशनल रिकमेंडेशंस हैं कि जिसमें लिखा हुआ है कि जी ईसीजी और एक्सरे आप 40 साल या 50 साल, या कौन सी लिमिट है? ये किसी ने पढ़ा है? नहीं सर।
चलो आज आके ना मैं अभी आऊंगा थोड़ी देर के बाद, जरा मुझे पूछ के बताना है एनेस्थीसिया वालों से कि जी उनकी क्या रिकमेंडेशन है कि वो ईसीजी और एक्सरे कब कराते हैं। ठीक है सर। तीसरा रह गया, ये तो मुझे नहीं समझ आई कि आपने एक गायनी का केस हो और आप सॉरी पेल्विक अल्ट्रासाउंड ना करवाओ, और इस केस के अंदर तो abdominal pelvic अल्ट्रासाउंड कराना बहुत क्यों जरूरी था? What happens to the ureters in जब ये डिसेंट होता है कोलैप्स में? सर हाइड्रोयूटर, क्यों हाइड्रोयूटर क्यों हो जाता है? sir, in case of prolapse and the cystocele, there is narrowing of the bladder neck. अच्छा एक सेकेंड, किसी ने कहा कि जी हमारे हॉस्पिटल में तो सबका कराते हैं। बात ये है बेटा, एग्जाम के अंदर जो आपके डिपार्टमेंट में हो रहा है उसको सिर्फ कह देना कि जी हमारे हॉस्पिटल में सबका होता है, वो इज नॉट इम्पोर्टेंट। उसका आपको साइंटिफिक जस्टिफिकेशन देनी इज इम्पोर्टेंट। अगर आप एग्जाम में कहो जी हमारे डिपार्टमेंट में तो इसी तरह होता है, इट डजंट वर्क वेल। हमारे डिपार्टमेंट में ये इसलिए होता है, उसकी ये साइंटिफिक रिकमेंडेशन है, गाइडलाइंस हैं, या इसके पीछे बेसिस ये किया गया है, हमने इसलिए ये चीज़ अडॉप्ट की हुई। सिर्फ आप बैठ के खुद कह दो कि जी हम सबका कराते हैं, वो आई डोंट थिंक सो विल वर्क वेल, क्योंकि सारी उम्र तो आपने सिविल हॉस्पिटल में नहीं रहना। यू विल काइंड ऑफ इंशाल्लाह अपग्रेड करोगे, किसी अच्छी जगह जाके काम भी करोगे, और उसके हिसाब से इन सब चीज़ों की एक कॉस्ट भी होती है जो कोई ना कोई बेयर कर रहा है, या गवर्नमेंट पकड़ कर रही है, या रिश्तेदार बेयर कर रहे हैं, या पेशेंट खुद कर रही है, या कोई ना कोई कर रहा है। और हमेशा आपने वो इन्वेस्टिगेशन करानी है जिससे आप बैठ के उसको जस्टिफाई कर सकते हो कि जी ये मैंने यूरिन इसका इसलिए कराया था क्योंकि आई वुड लाइक टू उसको यूटीआईज को रूल आउट करने के लिए। यूरिन मैंने इसका इसलिए कराया था टू फाइंड आउट कि इसके यूरिन के अंदर ग्लूकोज तो नहीं आ रही, या उसको प्रोटीन्स तो नहीं आ रही, कि उसको इतने अच्छे से डायबिटीज है, आई डोंट नो कब से कंट्रोल्ड है कि नहीं कंट्रोल्ड है, ताकि हम उसकी मैनेजमेंट कर सकें। अगर क्योंकि उसमें निकल आता है, अगर वो निकल आता है तो फिर देन व्हाट वी गोना डू इज कि जी उसके अकॉर्डिंगली फिर ज़ाहिर है आप उसके रीनल फंक्शन टेस्ट कराओगे और उसके हिसाब से फिर आगे चलोगे। ये अभी for general no, ECG is never is necessary for any GA। इसका तो मतलब ये है कि जिसका भी आपने कोई सेक्शन भी करना है या कुछ भी करना है उसका GA में अगर होना है तो उसके ECG कराओगे। आई डोंट थिंक सो, नंबर 1। नंबर 2, उसके हाँ कोई कार्डिक पेशेंट है या जब आप उसको चेस्ट सुनते हो उसमें आपको कोई मर्मर लगता है या कोई प्रॉब्लम लगता है या उसको कोई शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है या कोई सिम्टम्स हैं, फिर उसकी वैल्यूएशन आप जरूर कराओगे। लेकिन ECG कहीं भी नहीं लिखा हुआ लेस देन आई डोंट थिंक सो 50 ईयर्स से कम में आपको ECG रिकमेंडेड है। हाँ एक पेशेंट आता है वो नॉन कार्डिक डिजीज का है, उसकी वैल्यूएशन करनी है तो देन ऑफ कोर्स उसमें ECG भी होगी, अगर जरूरत होगा एक्टिव भी होगा, अगर वो एनेस्थीसिया वाला उसकी वैल्यूएशन कर लेगा। लेकिन ECG इज नॉट रिकमेंडेड टू बी इन एवरी केस। मैंने किसी भी एनेस्थीसिया की गाइडलाइंस में नहीं पढ़ा कि जी आपने 40 साल के ऊपर सबको करना। हाँ आप उसको जस्टिफिकेशन के लिए हमारे कहते हैं कि जी अननोन पेशेंट होते हैं, उन्हें पता नहीं होता, अनडायग्नोज होते हैं, तो इट इज़ बेटर कि वो करा दिया जाए। बट स्टिल आपने अपनी सिचुएशन में एग्जाम में किस तरह डिफेंड करना है, दैट इज टोटली डिफरेंट सिनेरियो, यू नीड टू नो दैट। अच्छा कमिंग बैक टू दिस, हाँ महेश मैं आपसे क्या पूछ रहा था कि हाँ जी यूरेटस को क्या होता है? Sir, in case of prolapse and cystocele, there is the narrowing of the bladder neck that cause the hydroureter, then hydronephrosis. And अच्छा सॉरी क्या कह रहे थे आप? बीच में आपकी आवाज कट गई, क्या कह रहे थे? जी सर, सर in case of prolapse and cystocele, there is the narrowing of the bladder neck
that leads to the hydroureted and and then leads to the hydronephrosis. ओके, ये देखना क्यों जरूरी है? Why do we need to see that, diagnose that? इसमें फिर ऐसा होता है कि ड्यूरिंग सर्जरी भी फिर उसका चांसेस हो जाते हैं कि यूरेटर का डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा हैं, और अगर ज़्यादा हाइड्रोयूरेटर और हाइड्रोनेफ्रोसिस है तो समटाइम्स आपको उसको पहले डीजे स्टंट डाल के डिफ्लेट करना पड़ता है उसको, लेकिन नॉर्मली ये सेकंड डिग्री में नहीं होते, थर्ड और फोर्थ डिग्री में ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से किडनी का ताकि स्टेटस ठीक हो, वरना स्प्रेड करके फिर हम आगे आगे चलें। थैंक यू। बेटा अपना ये मुझे पानी प्यार ये ना खाने में रखी। डॉक्टर साहब प्लीज, डॉक्टर शहजादी अयूब अपना आप प्लीज म्यूट कर लो। ईमान या तो इनको निकाल दो, क्या इनको इसको अपना करो। सर कर दिया है, सर कर दिया है। थैंक यू। अच्छा हाँ, मैं आपको क्या कह रहा था? सर ये ड्यूरिंग सर्जरी में ड्यूरिंग सर्जरी में देन यू हैव टू बी केयरफुल, एंड करके ये ना कि यूरेटर डैमेज की चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। चलो दैट्स अबाउट इट, आई थिंक वी आर ऑफ द टाइम। बाकी फॉर द बिगनिंग आई थिंक मैं विश वी वर ओके, पर थोड़ा सा इसमें हमने और मेहनत की और थोड़ा सा हिस्ट्री का, टाइमिंग का, क्वेश्चंस का और किताब पढ़ने की भी जरूरत है। किताब सर वो तो पढ़ी थी, सर वो पढ़ी थी। वो जब किताब पढ़ ली ना, फिर किताब से बाद पेशेंट के बारे में नहीं सोचा, सिर्फ किताब के बारे में सोचते रह गए। ये भी होता है शुरू में, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। चलो थैंक यू, एंड देन प्रॉब्ली इंशाल्लाह विल सी यू नेक्स्ट वीक। थैंक यू सर। ओके।